How are you? Hope you're very well at home, taking good care of yourself, and must be engrossed in studies now as we have moved a lot further with the course. I hope everything is getting clear to you and you're making proper notes. If you're still not making the proper notes, you better do that because that is the most important thing that would help you with your studies. Okay? So hope you're doing all the efforts to adjust to the different and a little bit difficult times. But I know you all are very smart. So adjusting in different roles is not difficult for you at least. तो students, we had studied in the last lecture, हमने discuss किया था about the tissues. We had made a flowchart diagram of the different kind of tissues which are present in the plants, right? To revise a little bit, हम पीछे वापस उस पे थोड़ा ध्यान दें तो हमने पढ़ा था that plants में दो type of tissues होते हैं. I had made a flow chart. You can refer to that, your notes. We had drawn a flow chart जिसपे मैंने plant tissues को basically दो categories में divide किया था. One was the meristematic tissue, second was the permanent tissue. और meristematic tissue जहां पे भी word आता है, I had said this is you have to associate with division. This word actually meristem comes from a Greek word meristos meaning dividing. ठीक है ना? तो ज्यादातर टर्मिनोलॉजी वहां से ली हुई है. So meristematic tissue means those tissues which are dividing, capable of division. और दूसरा था permanent tissue which have stopped the work of division, now have been given some kind of particular work. कोई और, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. Today our topic would be basically about the characteristics of meristematic tissues, where they are located, from where they originate, all about the meristematic tissues. So just to get an idea clear in your mind, just focus plant की growth कैसे होती है. मैंने पिछली बार भी आपको बताया था. एक seed होता है, seed के अंदर पहले division start करते हैं, start होता है ना, उसके बाद धीरे 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 there is the development of a small leaf and small roots and then they go on growing. अब ये growth कैसे होगा? Obviously division से होगा. cells जब divide करेंगे तभी होगा. तो पहले सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे. नाउ धीरे 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 जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं वैसे प्लांट का ग्रोथ होता रहता है, प्लांट बड़ा होता जाता है. और देन आफ्टर सम टाइम द प्लांट गेट्स स्मॉल लीव्स, देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. क्योंकि अब प्लांट बड़ा हो चुका है, उसका सिस्टम थोड़ा डेवलप हो चुका है, तो उसको वाटर कंडक्शन के लिए कोई टिश्यू चाहिए, उसको फूड कंडक्शन के लिए कोई टिश्यू चाहिए. सो इट इज नाउ गिविंग दीज रोल्स टू सम ग्रुप ऑफ सेल्स. पहले तो सारे ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या काम था? डिविजन. सो ऑल वर मेरिस्टेमेटिक. देन आउट ऑफ दोज टिश्यूज certain group of cells was given the work of doing photosynthesis in a leaf. तो वो उनका स्पेसिफिक टास्क हो गया. अब उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया और दे स्टार्टेड प्लेइंग देयर स्पेसिफिक रोल, तो वो हो गए परमानेंट. अदर्स विच वर लेफ्ट विद द वर्क ऑफ डिविजन दे आर मेरिस्टेमेटिक. तो प्लांट्स के अंदर दो टिश्यूज हैं, मेरिस्टेमेटिक जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं और परमानेंट विच हैव बीन असाइंड अ टास्क सम पर्टिकुलर फंक्शन अदर देन डिविजन. तो उनको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं. सो अबाउट दैट विल बी स्टडिंग इन द next lecture. Right now let us talk about meristematic tissue, and I had made this, just paying attention to this, I had written it like that. One was describing this based on location, right? And second was describing the tissues based on origin. ये मैंने आपको बताया था कि meristematic tissues को हम दो ways में describe कर सकते हैं. We are not dividing meristematic tissues into two groups. We are describing them in two different ways. क्योंकि मान लो अगर ये प्लांट है
है ना, ये प्लांट है. सो इफ दिस इज द प्लांट, इट हैज लीव्स, it has roots, it has a shoot, right, and at different parts of the shoot there is growth of the branches. ये इस टाइप से होगा. अब इसमें हमें ये देखना है बेस्ड ऑन लोकेशन, इसी प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग जगहों पे होंगे. तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मान लो इस जगह पे मेरिस्टेमेटिक है या इस जगह पे मेरिस्टेमेटिक है, या हम कहीं पे भी. आई कैन टेल यू, यू कैन आस्क मी मैम वेयर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन दिस होल प्लांट, तो मैं आपको बता सकती हूँ इस जगह पे या इस जगह पे मेरिस्टेमेटिक है. तो उस समय मैं किस टाइप से डिस्क्राइब कर रही हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. आई एम एक्सप्लेनिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. नाउ यू से ओके मैम, टेल वी नो कि ठीक है यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन क्या हमें और थोड़ी उनकी जानकारी दे सकते हैं आप? तो व्हाट वुड आई से? I would tell you from where they have originated, क्योंकि the plant has originated from a seed, और seed में से धीरे धीरे there was a seed, धीरे धीरे roots आए, shoots आए, leaves आएंगी, है ना? All these arose from the single seed. Then some of them were given some specific task. तो वो सीड में से ओरिजिनेट नहीं हो, पहले सारे मेरिस्टेमेटिक सीड में से ओरिजिनेट हो गए, फिर कुछ परमानेंट हो गए. तो परमानेंट देन अगेन उनके नीचे कुछ टिश्यूज होते जो डिवाइड करते. सो देन आई कैन से दैट सम हैव ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सीड्स, बट सम ऑफ दीज टिश्यूज जो मैंने लोकेशन पे के बेस पे बताया था आपको, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सर्टेन परमानेंट टिश्यू. बात उन्हीं की कर रही हूं, लेकिन देन आई एम डिस्क्राइबिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द origin, कहां से ओरिजिनेट हुए. सो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वन बेस्ड ऑन लोकेशन, प्लांट में कहां पे प्रेजेंट है. सेकेंड, वो कहां से ओरिजिनेट हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दिस इज अ टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अबाउट दिस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टिश्यू, राइट. इफ दिस वॉज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहां पे है मान लो, या इफ आई से इट इज हियर और आई से इट इज हियर. इसी टिश्यू के बारे में मैं आपको ये भी बता सकती हूँ ना कि ये डायरेक्टली सीड में से आया, और कुछ टिश्यूज है जो सीड में से नहीं आए, कुछ परमानेंट टिश्यू में से आए. तो उसी टिश्यू को मैं कैसे डिस्क्राइब कर रही हूँ? बेस्ड ऑन ओरिजिन, राइट. सो दीज वर आवर थिंग्स विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब हमें इसको फर्दर पढ़ना है. सो just excuse me for a while, 1 minute. Okay, so I just missed out on the dust part, so please excuse me. So this was what we were talking about, the meristematic tissues. What I was telling you is we can describe them based on from where they have originated, or secondly where they are located on the plant. एक ही plant tissue की बात कर रहे होते. अब अपन इनकी details देखते हैं. What are the characteristics of meristematic tissue? Meristematic tissue, अब आप imagine करें इनका work, basic and main function क्या है. They are dividing. इनका काम क्या है? They have been given the function of division. अब ये डिवाइड करते हैं. मान लो कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है, या कोई भी चीज आपको दो टुकड़ों में काटनी है. जस्ट इमेजिन द कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी. प्लांट की सबसे पहले बाहर क्या होती है? सेल वॉल. ठीक है. अगर इनकी सेल वॉल, इन सेल प्लांट्स की टिश्यू की सेल वॉल्स बहुत थिक होती, तो क्या ये प्रॉपरली डिवाइड करते? हमको कोई एक थिन शीट ऑफ पेपर कट करने में आसानी होती है, या हमको बहुत सारी एक पूरी बुक कट करने में आसानी होती है? व्हेन इट इज वेरी थिन इट बिकम्स इजियर फॉर अस. सो डिविजन इज वन वर्क जिसमें सेल वॉल्स थिन होगी तो बेटर होगा. सो सेल वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर वेरी थिन. सेकेंड, सेल वॉल थिन होती है. अब दूसरी चीज हम आते हैं डिपेंडिंग ऑन द, और हम बात करते हैं अबाउट अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सेल पार्ट, दैट इज द साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म जितना डेंस होगा उतने उनमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और उतना परफेक्टली डिविजन होगा. सो साइटोप्लाज्म इज
dense. Cytoplasm dense होता है and lot of cell organelles होते हैं इसमें. उसके बाद let's talk about the nucleus. Nucleus is as we had talked in cell division, न्यूक्लियस का बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है इन सेल डिविजन. याद है हमने पूरा डिस्कस किया था. तो न्यूक्लियस इज वेरी प्रोमिनेंट एंड एक्टिव इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट एंड एक्टिव. ओके, नाउ अब और चीजों पे बात करें. चलिए वैक्यूल की बात करते हैं. प्लांट टिश्यू में अपन ने डिस्कस किया था प्लांट सेल में इट हैज अ वेरी बिग वैक्यूल. बट अब आप सोचिए क्या सारी प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़ा होगा? वैक्यूल का काम क्या था? स्टोरेज. इफ अ सेल इज डिवाइडिंग कॉन्स्टेंटली और अ टिश्यू इज डिवाइडिंग कॉन्स्टेंटली, डू यू थिंक इट वुड नीड टू स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स? नो, because it has a work of dividing, so it doesn't have to gather anything and store it. वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो कुछ इकट्ठा नहीं कर रहा, तो स्टोरेज का काम कहाँ आएगा? सो वैक्यूल की कहाँ जरूरत पड़ेगी? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज प्लांट टिश्यूज which have very small or no vacuole. Sometimes vacuoles are absent or they may be very very small in size. So vacuoles are small. We can say vacuoles are either absent or very small. ठीक है? Okay. Now talking about, they are very metabolically active. फटाफट ये डिवाइड करते हैं. Metabolically active होते हैं ये. अब आप अपन और इसकी बात करें, इन सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज द थर्ड सेल, दिस इज द फोर्थ सेल. तो मैं इस स्पेस को, ये जो बीच में स्पेस है, इसको क्या बोलती हूँ? इंटरसेल्यूलर स्पेस. अब इमेजिन कर सकते हैं कि क्या इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, ये कॉम्पैक्ट होगा? जस्ट थिंक कि ये सेल अपने हिसाब से डिवाइड कर रहा है, ये सेल अपने हिसाब से डिवाइड कर रहा है. दिस इज इट. इफ दिस वाज द केस, वुड द होल टिश्यू फंक्शन कलेक्टिवली? नो. सो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट. और ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, हम ऐसे बात कर सकते हैं. ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं of the meristematic tissues. They have a thin cell wall, they have a very active and prominent nucleus, they have a very dense cytoplasm with lot of cell organelles, they have vacuoles are absent, intercellular spaces are also absent in these kind of tissues. तो ये टिश्यू, जो भी डिवाइडिंग टिश्यू होगी, ये उन सारे, उस टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. होप दैट इज क्लियर. क्योंकि उनका फंक्शन ही डिवीजन है, तो वो वैसे ही डेवलप होंगे ना. एवरी टिश्यू एंड एवरी सिस्टम ऑलवेज डेवलप्स अकॉर्डिंग टू इट्स रोल एंड इट्स फंक्शन. ठीक है ना? अब अभी आप देख रहे हो, जैसे हमारा एजुकेशन वाज ऑलवेज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस एंड वी मेट ईच अदर एंड ऑलवेज वी वर in touch with each other. Now, because according to the condition, we have shifted a little bit towards the technology. We are not stopping our function. Our function is to, for example, our work is to educate you, your work is to take the knowledge. So we have not stopped our function, we have adjusted accordingly. Every system, that was just an example, every living organism also has structures in its body जो इस तरह से डेवलप हुए कि वो उस सिस्टम को परफेक्टली वर्क करने में हेल्प करें. तो इन सेल्स का काम क्या है? डिविजन. सो दे हैव सर्टेन फीचर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिविजन. सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है? सो होप दैट इज क्लियर. ओके, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. नाउ आई हैड सेड दैट we had talked about meristematic tissue. So now the question which is asked basically, for example, this is a plant. First let us study according to its origin meristematic tissue एक plant में कहाँ पे present हो सकता है. If this is a plant, this is a plant, let's see where the meristematic tissue. I had said based on location they are of
three types. One was apical, second was intercalary, and third was lateral. Now let's see where they are present. This portion, this portion, that is the tip of root and tip of shoot. They have apical मेरिस्टम. कौन सा होता है यहाँ पे? एपिकल मेरिस्टम. ये भी क्या होगा? एपिकल मेरिस्टम होगा. एपेक्स वर्ड टिप के लिए यूज होता है. एपेक्स वर्ड इज यूज फॉर व्हाट? टिप. सो द टिप ऑफ अ शूट एंड द टिप ऑफ रूट, दे हैव एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू. प्लांट में जिस जगह पे ग्रोथ होती है वहां पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं, और अगर वो टिप वाला एरिया है तो उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ शूट. एंड ऑब्वियसली रूट और शूट की लेंथ ही तो बढ़ाएगा ये. ठीक है. सो इट इज प्रेजेंट एट द टिप. एंड व्हाट डज इट इंक्रीज? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ अ प्लांट, हाइट ऑफ अ प्लांट. ओके. नाउ दिस एरिया मान लो टिप है, इतना ही हम टिप मान ले. दिस एरिया, यहां से नोड्स डेवलप होते हैं. नोड किसको बोलते हैं? जहां से ब्रांचेस डेवलप होते हैं ना, उस एरिया को बोलते हैं नोड. और इंटरनोड, जहां से बीच वाला एरिया जो है, दैट इज इंटरनोड. वहां पे भी ऑब्वियसली इतना नहीं है कि सिर्फ ये टिप ही डेवलप होगा. कुछ एरियाज तो ऐसे होंगे एपिकल टिश्यू के नीचे भी जो डिवाइड कर रहे होंगे. सो द पोर्शंस व्हिच आर लेफ्ट बाय दिस एपिकल टिश्यू, ये तो एपिकल है, इसके नीचे जो डिवाइडिंग टिश्यूज होंगे उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स. इंटरनोड्स, एरिया बिटवीन नोड्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज प्रेजेंट. यहां पे मान लो एक लीफ है, तो उस लीफ के बेस पे भी कौन सा होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा. इट डेवलप्स ट्विग्स वगैरह, जहां से ब्रांचेस निकलते हैं ना, वो नोड्स होते हैं. वहां पे बेस ऑफ लीफ पे या बेस ऑफ ब्रांच जो होगा, इंटरनोड जो होगा, वहां पे कौन से प्रेजेंट होते हैं? इंटरकैलरी. सो द एरिया which has dividing cells which is left behind by the apical tissue is intercalary. तो ये क्वेश्चन क्या आता है? where is apical present? Tip of root and tip of shoot. It increases the height of plant. Where is intercalary present? It is present at the internodes, base of leaf. It also increases the length of the height of plant. वो plant की ज्यादातर height बढ़ाता है या length, उसको add ही करता है. ठीक है. length of twigs बढ़ाता है, वो इंटरकैलरी होगा. तो ये तो दोनों यू सेल्स डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल वन सेल इज दिस वे, इट इज डिवाइडिंग दिस वे, इट इज डिवाइडिंग दिस वे, और इट इज डिवाइडिंग दिस वे. ठीक है. तो ये दोनों होंगे एपिकल एंड इंटरकैलरी. लेकिन प्लांट आप जानते हो, इट ऑल्सो ग्रोज लाइक दिस. थिकनेस में बढ़ता है ना, यू थिकनेस में भी तो बढ़ता है. तो जो यू सेल्स डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वे, जो स्टेम की गर्थ को बढ़ाता है, दिस वे, दिस इज द, ये इस टाइप से है, ये तो होगा एपिकल. ये जो होगा दैट इज लेटरल. दिस वन, ये जो इस टाइप से ग्रोथ बढ़ा रहा है ना, दैट इज लेटरल. लेटरल को क्या कहते हैं? साइड बाय साइड को लेटरल बोलते हैं, साइड बाय साइड. तो लेटरल ग्रोथ जो गर्थ या थिकनेस ऑफ अ प्लांट बढ़ाता है, यू डिवाइड होता है दिस वे, जो विड्थ बढ़ा रहा है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड लेटरल टिश्यू. जो हाइट बढ़ा रहा है, एपिकल और इंटरकैलरी, जो विड्थ बढ़ा रहा है, तो एपिकल कैसे डिवाइड होंगे? 1, 2, 3, 4. लेटरल कैसे डिवाइड होंगे? 1, 2, 3, 4, दिस वे. सो लेटरल टिश्यू increases the girth or the diameter of a plant, thickness, width of a plant. Apical and intercalary add to the length or the increase in the height of a plant. ठीक है. ये टिश्यूज लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं. अब इन्हीं को मैं बताऊं एज प्राइमरी और बेस्ड ऑन ओरिजिन, की एपिकल और इंटरकैलरी कहां से ओरिजिनेट हुए और लेटरल कहां से ओरिजिनेट हुआ. तो आई वुड टेल यू, वैसे भी मैं बता सकती हूँ ना, तो आई वुड से एपिकल एंड इंटरकैलरी बोथ आर कॉल्ड
primary meristms because they increase the primary growth of a plant. Growth primary पहले सीड था, सीड के अंदर जो सेल्स डिवाइड कर रहे थे वो थे प्रोमेरिस्टम. उन सीड्स में से जो टिश्यू डायरेक्टली आए हैं वो हो गया प्राइमरी मेरिस्टम. अब इन टिश्यूज में, ऐसा आई टोल्ड यू अर्लियर, कुछ सेल्स को सम स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाएगा, वो हो जाएंगे परमानेंट. और जब परमानेंट टिश्यू के में डिवीजन वापस कई बार आता है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन थिकनेस बढ़ती जाती है प्लांट की, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, थिक ग्रोथ आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ, थिकनेस इंक्रीज, कुछ परमानेंट हो गए, जाइलम फ्लोएम बन गए, लेकिन जाइलम फ्लोएम के नीचे भी कुछ टिश्यूज डिवाइड करते रहते हैं. उन टिश्यूज दे विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ जाइलम फ्लोएम या थिकनेस ऑफ द ब्रांच, स्टेम बढ़ाएंगे. तो वो जो थिकनेस ऑफ स्टेम और थिकनेस ऑफ परमानेंट टिश्यू बढ़ाते हैं, दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम. सो दिस लेटरल इज ऑल्सो सेकेंडरी. वाई आई टेल यू वेट. सो समझ में आ रहा है, एपिकल एंड इंटरकैलरी प्राइमरी है और लेटरल एंड सेकेंडरी आर सेम. एपिकल बेसिकली, अब होप दिस इज क्लियर. अब इतना सा ध्यान में दीजिए कि कैसे होता है. जस्ट एक्सप्लेन यू नाउ. फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट को इमेजिन करो, सीड है, उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ. वो जो सेल सीड के अंदर थे वो क्या थे? प्रोमेरिस्टम. अब वो सीड धीरे 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 ये स्टेम बनती गई, रूट आया उसमें से, तो प्राइमरी ग्रोथ हुई है. लेकिन अब उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से कुछ टिश्यूज जैसे जाइलम में ऐड हो गए, दे वुड कंडक्ट वाटर. फ्लोएम में ऐड हो गए, दे वुड कंडक्ट फूड. लीफ का पार्ट बन गए तो दे वुड डू फोटोसिंथेसिस. ये हो सकता है, दैट इज प्रोसीजर ऑफ ग्रोथ. नाउ जो डिवाइड कर रहे थे अभी भी वो तो थे मेरिस्टेमेटिक, और जिनको ये फंक्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस दे दिया गया या कंडक्शन ऑफ वाटर दे दिया गया या कंडक्शन ऑफ फूड दे दिया गया, दे बिकेम परमानेंट. ठीक है. परमानेंट टिश्यू के नीचे भी या उनके साथ भी, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम परमानेंट टिश्यू होते हैं, उनके साथ, उनके बीच में there are certain cells which are constantly dividing and those are lateral meristem या secondary, जो कैम्बियम बोल सकते हैं उनको. जैसे जो ऐसे बढ़ रहे होंगे, पहले जाइलम बन गया, मान लो यहाँ पे फ्लोएम बन गया, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, अब थिकनेस उनकी बढ़ती जा रही है. तो जो परमानेंट टिश्यू से बनते हैं सेल्स, परमानेंट टिश्यू से दे आर गोइंग टू अ जनरलाइज्ड फंक्शन ऑफ डिवीजन. परमानेंट टिश्यू से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. दे समटाइम्स मूव बैक टू देयर ओरिजिनल फंक्शन ऑफ डिवीजन. दे आर कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. एक बार उनको फंक्शन मिल गया, उस फंक्शन को वो करते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ हिस्से, उन्हीं के बाहर के या बीच के कुछ हिस्से वापस डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. सो दोज टिश्यूज आर कॉल्ड सेकेंडरी टिश्यूज. लेटरल, दे वुड इंक्रीज द थिकनेस. और लेटरल या सेकेंडरी की बात करें अपन, so it is of two types. One is, let me write it here, one will be cork cambium and second is vascular cambium. What is this cambium? Cambium means word is indicating division below the permanent tissue. अब अपन जब परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे ना, तो उसमें अपन देखेंगे एपिडर्मिस क्या होता है, कॉक क्या होता है. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड कैम्बियम. कैम्बियम ऑल्सो मीन्स अ डिवाइडिंग टिश्यू बिलो द परमानेंट टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट. बाहर कॉर्क होगा, कॉर्क के नीचे कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे जो कॉर्क की थिकनेस को बढ़ाएंगे. Those tissues are called the cork cambium. और बीच में ऐसे ही पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे इसकी रिफिल है, उसको इमेजिन करो लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. तो उन रिफिल्स की भी थिकनेस जो बढ़ाएगा वो होगा वैस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन. तो हमें क्या ध्यान में रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्क डिविजन होता है. एक प्लांट में दे आर लोकेटेड, वन एट द टिप, बिलो द टिप, ऑन द साइड्स. टिप वाला एपिकल, उसके नीचे वाला जो इंटरनोड्स और बेस ऑफ लीफ पे होता है वो इंटरकैलरी, और जो थिकनेस बढ़ाता है वो है लेटरल.
ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए? डायरेक्टली फ्रॉम सीड, तो इनको हम दोनों को प्राइमरी बोलते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू के नीचे डिवाइडिंग टिश्यूज है या बीच में डिवाइडिंग टिश्यूज है, उनको हम लेटरल बोलते हैं। वो थिकनेस ऑफ द प्लांट बढ़ाता है, उनके लिए सेकेंडरी वर्ड भी आ जाता है, ठीक है। बिकॉज सी दिस डिफरेंशिएशन हैज नॉट बीन गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तो आपको सिर्फ एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल याद करना है, दैट इज इनफ। वेयर दे आर लोकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और इंटरकैलरी का एक क्वेश्चन बहुत आता है ग्रासेस में। ग्रासेस में इंटरकैलरी होता है। ग्रासेस में टिप की ग्रोथ कम होती है, पूरा ग्रास बढ़ता है तो इंटरकैलरी होता है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन तो वर्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यू जस्ट नीड टू नो दैट प्राइमरी टिश्यूज, वही बात हो रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे लोकेटेड है, लेकिन वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? सीड से, तो अपन उसको प्राइमरी बोलेंगे। और अगर अपन कहते हैं कि वो सीड से नहीं आया, वो परमानेंट टिश्यू के नीचे है या परमानेंट टिश्यू से बना है, तो हम उसको सेकेंडरी बोलेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ always increases the thickness of a plant. Primary growth initial cells division indicate करता है, ठीक है। So that is about the meristematic tissue. आपको याद क्या रखना है? Meristematic tissue are dividing. Apical meristems word आ जाए division. They have a thin cell wall. They have dense cytoplasm. They have a very prominent nucleus. They have vacuoles which are almost negligible in size or absent, and they do not have intercellular spaces. They are compact tissues, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक और कहाँ लोकेटेड है? टिप पे एपेक्स, इंटरनोड्स पे इंटरकैलरी, बेस ऑफ लीफ पे इंटरकैलरी, और थिकनेस दैट इज लेटरल। 3 जगहों पे लोकेटेड है। एपिकल, इंटरकैलरी प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज करते, इनिशियल ग्रोथ वेरी प्राइमरी, या अपन जैसे कहते हैं ना प्राइमरी सेक्शन, शुरुआती दौर। उसके बाद सेकेंडरी आफ्टर सर्टेन टाइम, तो सेकेंडरी डेवलप्स फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू एंड प्राइमरी डेवलप्स राइट फ्रॉम द सीड, ठीक है। तो ये दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमें कुछ वर्ड्स अलॉन्ग विद दिस, होप दिस इज क्लियर टू यू। अब along with this we would be talking about certain words. जब अपन बात करते हैं ना about the tissues and all, there are certain words which are coming again and again, जैसे undifferentiated, differentiated और डी-डिफरेंशिएटेड। ये वर्ड आते रहते हैं। और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स और डी-डिफरेंशिएशन, ये वर्ड्स आते हैं, तो हम इनको समझ लेते हैं। व्हाट डू दे मीन? अनडिफरेंशिएटेड सेल एग्जांपल, दिस इज अ सीड। अभी इसके अंदर सारे सेल्स क्या वर्क कर रहे हैं? They are constantly dividing. All cells are dividing. So they are undifferentiated cells. अब ये भी जैसे शूट बना, तो ये भी सेल्स डिवाइड करेंगे। The plant is growing. इसका मान लो ये पहला लीफ आया, तो वो भी undifferentiated cells, because what? Original जैसे ही है, original were dividing and these also are dividing. Till they go on dividing, they become undifferentiated cells. They are undifferentiated. डिफरेंस वर्ड से रिलेट करो। डिफरेंस, दे हैव नॉट गेन्ड एनी डिफरेंस फ्रॉम देयर ओरिजिनल फंक्शन। अभी तक वो वही कर रहे हैं डिवीजन का। तो एपिकल तब भी जो डिवाइड करते जा रहे हैं वो तो अनडिफरेंशिएटेड होंगे। अनडिफरेंशिएटेड व्हेन दे गेट अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ जाइलम का पार्ट बन गए, कुछ लीफ का पार्ट बन गए, कुछ फ्लोएम का बन गए, कुछ ब्रांच में परमानेंट टिश्यू बन गए जो स्टोरेज का काम कर रहे हैं या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। दे हैव गॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन, नाउ दे हैव लेफ्ट डिवाइडिंग। उनको बोल दिया गया है कि डिवाइड और सेल्स कर रहे हैं, अब आप थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करो, बिकॉज द सिस्टम हैज ग्रोन, यू आइदर कंडक्ट वाटर, यू डू फोटोसिंथेसिस, दे हैव गॉट अ स्पेसिफिक रोल
those cells are called differentiated cells. ठीक है, तो differentiated को क्या मिल गया? एक specific function. First primary function was division, then they got a second function, specific function, particular, और उसके बाद कई बार क्या होता है, they again regain the capability, कुछ cells जो permanent में है, they gain the capability of dividing or they start dividing again. I should better say to permanent जो थे उनके नीचे कुछ cells और divide करते रहते हैं, तो that cells are called de-differentiated. जो growth उनसे होती है de-differentiation, regaining the capability of division. पहले function क्या था? Dividing. That was primary. They got a specific function and then they moved back to the function of division. That is called de-differentiation. So this we can say differentiated वाले कौन से क्या form करेंगे? Permanent. So if we say it can go like this. It can go like this, primary, or you can say meristematic. Give de-differentiated cells which are permanent, and permanent which again gain the capability of meristematic are called de-differentiated cells which are secondary in nature tissues, or you can say lateral meristem develops from permanent, secondary tissue develops from permanent, meristematic से permanent, permanent से फिर secondary tissue आता है. ठीक है, so secondary tissue और lateral tissue is developed from what? Below or between the permanent tissues. ठीक है, they are of two types. One is cork cambium, second is vascular cambium. Vascular xylem phloem के बीच में कुछ cells जो divide करते हैं, और cork tissue, I would tell you about that in permanent tissue. उसके नीचे जो cells divide करते हैं वो है cork cambium. Cambium word in, you don't say meristematic. Cambium word is dividing below or between permanent tissue. Cambium dividing cells between or below permanent tissue. So this is about meristematic tissue. We would talk about permanent tissue in the next lecture. Till then, please work out properly. ये questions बहुत पूछे जाते हैं. Where is the location of the tissues? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए. Where is like टिप पे कौन सा होता है, या कोई प्लांट का ऐसे दे सकते हैं बेस ऑफ प्लांट पे कौन सा होगा. So please, या grasses में कौन सा है, grasses में intercalary है. So please pay attention to that. And इस portion को अभी पढ़िए. Next में we would complete the portion on permanent tissue. That is a little longer, but you would understand. I'm going slow because gathering too much knowledge at one time is not very conducive for the mind. The mind becomes confused. आप sections में पढ़ते जाए. That would be helpful. Okay. So till then, till we meet next time, please make your notes properly. And if you have any doubt, you can always ask me. Thank you.